Welcome to Strategy NK. This is Sanchit, and today with me is Colonel Ajay Rana, retired Colonel Ajay Rana. So let me introduce him. Colonel Ajay Rana, before joining the army, he was an NCC cadet and C certificate holder, and he also attended the RDC camp in 1987. He's a Governor Medal holder, and after that, he got commissioned in army in 1990s in Artillery Regiment, and in and he has served 6 tenures in Jammu and Kashmir, and there he has got Sena Medal. He has been awarded with the Sena Medal, and apart from that, he has authored more than dozen books based on the theme of military affairs and military history. So let us start the discussion. और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बिकॉज इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू मेक मोर सच वीडियोस जो एक नैरेटिव को काउंटर करेगी जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बेस्ड है. सो प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, एक जो आर्मी के ऊपर एलिगेशन लगता है सर कश्मीर में, एक नैरेटिव बनाया गया है. अगर हम पढ़ते हैं, विकिपीडिया में पढ़ते हैं, न्यूज पोर्टल्स में देखते हैं, हर जगह देखते हैं दैट आर्मी इज अ रेपिस्ट. इंडियन आर्मी इज अ रेपिस्ट आर्मी. जो एलिगेशंस लगते हैं 90s के टाइम से एलिगेशंस लगते आ रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने जो है कश्मीर में काफी रेप्स किए हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं, एब्डक्शन किए हैं. तो हाउ मच ट्रू दिस इज, कितनी सच्चाई है इस बात में? एंड वी कैन ऑल्सो नॉट डिनाई कि ऐसा हुआ नहीं है. तो आई वॉन्ट यू कि आप दोनों पॉइंट्स रखें एक बैलेंस मैनर में कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, एंड व्हाई द अदर पीपल इन कश्मीर, जो कश्मीर में ऐसा क्यों बोलते हैं कि आर्मी हैज ऑलवेज डन द ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर. Okay, Jai Hind, Sanchit, and Jai Hind, everybody. See, Sanchit, when somebody designs or plans a counter terrorist or say insurgency, there's a package. It's not only somebody coming to Kashmir with guns and some bullets and fighting the army. That's end of the struggle or end of the design of the battle as the enemy conceives it. जो दुश्मन का इरादा है वो हर लेवल पे होता है. दुश्मन आपके माइंड को टारगेट करता है. कुछ लोगों को उसने हथियार पकड़ा के हमारा कैनन फॉडर हमारे आगे डालना होता है. कुछ लोगों को उसने माइंड को इतना सर्वर्ट करना होता है, एजुकेशन इंटेलेक्चुअल क्लास को सर्वर्ट करना होता है, नॉर्मल पब्लिक को सर्वर्ट करना होता है, विद द होप दैट इफ नॉट एवरीबडी, एटलीस्ट 40-50% ऑफ देम विल बिलीव व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू देम, वेदर इट इज अ white lie or it is a manipulated truth. There's a very subtle difference between two. As regards Indian Army concern, let me tell you another thing. Most of people in Kashmir refer to every soldier as a army guy. Anybody wearing combat dress, whether he may be belonging to a police service, central police organization, could be PMF, anything. So they are referred to as army. Nevertheless, whether it is army, CRPF, DSF, whosoever has been operating in Valley, and I've been myself been there since '94 in different stages, and I've seen terrorism in Kashmir at the peak, then coming down, then climbing again, then getting into a civil agitation mode. Fortunately, I've seen all these phases myself in there. I don't have to read newspapers or read what others are doing. I've seen it firsthand, most of it. As far as record of human rights violation in a disturbed area like Valley is concerned, whether it is army or CPOs or PMF, our record is very, very good. Had not that not been so, जब UN में और जब हर जगह इंटरनेशनल फोरम्स में नॉन रेजिडेंट जो इनकी लॉबी है प्रोपेगेंडिस्ट की, जब वो शोर मचाते हैं तो उनकी सुनता क्यों नहीं है कोई? इसलिए नहीं सुनता, उनका जो जितना प्रोपेगेंडा है, जो उनका ऑडियंस है, जो उनके लिसनर्स हैं, वो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे हैं, जहाँ पे वो कुछ ही बोल के पोस्ट कर देते हैं और लोग उनको सुनते हैं और कुछ मानते हैं, कुछ उनको एग्री करते हैं, कुछ अप्रिशिएट करते हैं. बट एक ऐसी बॉडी इंटरनेशनल लेवल पे और विद इन इंडिया लाइक हमारी HR कमीशन है, we know there are so many NGOs, international NGO, Amnesty International, who are known to be working against India otherwise. Yes. None of them has taken cognizance of what complaints people are filing because there's no truth. और ये मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 100 में से 100 allegations जो थे false थे. There have been cases, but if you look at the figures, probably they're in decimals.
maybe 0.05% or something. It's not even 1% of the total claims made. Because in army and in even in police and judiciary, whatever allegations made of this kind, say rape, molestation, this is a very serious allegation. Whether it happens in Delhi or in Delhi, there's nothing, I mean, which absolves offender of his crime just because he's very carrying uniform or wearing uniform, carrying rifle. No. But what happens is all these cases are investigated immediately. Army is the first one to react in wherever the punishment has been given for whatever reason. You'll see army is the first one to punish, whereas others who are involved in same cases, the cases are pending in the court. Because in army, we can't try people who are same conflict or same issue. There are 2-3 kind of people involved in a case where some death has happened or molestations happen. Say there's an army Jawan, there's a police guy, and there's another guy. Army guy will get jacked up first. Maybe within 7 days, 10 days, he's sent out. And look at the others. They are there fighting cases, hiring lawyers, going to Supreme Court. So this is all baseless. That's a one word of saying it. But then there's a perception. A person who undergoes such a torture, if at all it happens, it is very unfortunate. It could happen everywhere. You know, both of us belong to other part of J&K, but even our areas are disturbed. We have operations happening around us, so it will disturb anybody. But the amount of allegations which are made against army, if those were true, there would have been civil war till now. Yes. Won't you pick up a weapon if somebody was to do same thing, somebody in your family? Yes. So it doesn't. It's just a propaganda. Don't worry. We are very good. And sir, you said you have seen things on ground when you were in the valley during 90s. And there's a request to you that if you can speak in Hindi, because most of our listeners understand Hindi clearly. So एक allegation लगता है जो आपने चीजें देखी हैं वैली में 90s के टाइम पे ग्राउंड रियलिटी आपने देखी है तो हाउ अ टेररिस्ट और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं लाइक जेकेएलएफ है हुरियत है सेपरेटिस्ट है और जो आईएसआई का डीप स्टेट है हाउ इट यूज टू प्ले द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज वी नो दैट कि मीडिया का इन्फ्लुएंस जो उस टाइम पे था वो उतना ज्यादा नहीं था जो अगर आज के टाइम पे हम कंपेयर करें सोशल मीडिया को उस टाइम पे 90s के टाइम पे कोई सोशल मीडिया नहीं था मोस्ट ऑफ द न्यूज वर आउट फ्रॉम द रेडियो स्टेशन से न्यूज जाती थी और जो लोकल न्यूज़पेपर होते थे और वो टेररिस्ट के द्वारा जो छपाई गई न्यूज होती थी वही छापते थे प्रेशर में आके तो हाउ आईएसआई यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू to manipulate the minds of local Kashmiris during that time? See, again, it was a multi-level approach. हर लेवल पे उन्होंने एक्शन लिया. क्या करते हैं ये लोग जैसे आईएसआई है तो जो भी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये पूरी जो पॉपुलेशन सेगमेंट होता है जैसे कश्मीर में पॉपुलेशन है व्हाटएवर उसकी सेगमेंटेशन की जाती है. कुछ लोग हैं जो गलीबल हैं, मोस्ट ऑफ दम ऐसे जो पढ़े लिखे कम हैं तो उनको थोड़ा सा झूठ बेचना आसान होता है. उनके लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा डिजाइन होता है. फिर एक पढ़ी लिखी क्लास है लेकिन आपने कहा सोशल मीडिया नहीं था. एग्रीड, सोशल मीडिया नहीं था इसलिए कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित के साथ भी हुआ और जो बाकियों के साथ होता रहा वो इंडिया एट लार्ज एंड वर्ल्ड ऑफ कोर्स हैड नो क्लू बिकॉज सोशल मीडिया नहीं था. बट एट द सेम टाइम लोकल मीडिया काफी एक्टिव था. कश्मीर में उस टाइम भी 50 से ज्यादा न्यूज़पेपर छपते थे. उन न्यूज़पेपर को क्लियर ऑप्शन थी कि भाई इधर जो हमारी कहानी छाप दो और आपको गोली मार दी जाएगी, जो कि उन्होंने किया भी. पंजाब में भी हुआ था, यू सीन इट एवरीवेयर. सो उन न्यूज़पेपर्स ने तो हद ही कर दिया. अगर आप उनकी न्यूज़ कटिंग देखेंगे बेरूत के फोटो और लेबनान के कॉन्फ्लिक्ट के फोटो और लेडीज ईरानियन शक्लें सामने से दिख रही है, ईरान की है बुर्का पहन के. उस जमाने में तो कश्मीर में बुर्का कल्चर ही नहीं था. कश्मीर वाज अ वेरी लिबरल थिंग प्लेस 90s तक. तो ये बुरके का और ये जो जैसे अरबी वो पहन लेते हैं हिजाब जूब ऐसा कुछ नहीं था. फोटोज वो होती थी तो हमें तो भी पता चलता है बाहर की फोटोग्राफ है. लेकिन जो गलीबल लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, जो जानबूझ के मिसलीड होना चाहते थे बिकॉज यू नो कश्मीर में ओवर प्रॉब्लम्स भी थी. कोई इंसडेंसी क्यों आती है किसी जगह पे, कुछ तो होता है ना, कुछ आग होती है फिर धुआं निकलता है व्हाटएवर. करप्शन हमारी स्टेट में शुरू से बहुत तगड़ी रही है, फर्स्ट क्लास करप्शन. 4 फैमिलीज ने कश्मीर को लूटा. वो कश्मीरी भी, वो फैमिलीज अगर उनके नाम देखेंगे वो कश्मीरी नाम है ही नहीं. अब गिलानी ही देख लो, हमदानी ही देख लो, ये सारे जो बाहर से हैं, ये अरब्स हैं, ये कश्मीरी तो पहले थे ही नहीं. जो कश्मीरी हमारे कन्वर्टेड कौम हैं, जो टार्स हैं, वानीज हैं, जो लोकल हैं, रहना हैं, राणा बन गए, कोई रहना रह गया. तो ये लोग इन्होंने लीड नहीं किया. इनको जो लीड करने वाले लोग थे ये सारे, इनके जो सरनेम है वो नॉन कश्मीरी हैं.
बट ठीक है, वो सेंचुरी पहले, 2 सेंचुरी पहले आए, सेटल हुए। तो इन्होंने क्या किया कि जब ये कैंपेन चली तो लोकल न्यूज़पेपर का बहुत इस्तेमाल हुआ और मस्जिदों का बहुत इस्तेमाल हुआ। 90s में फिर भी मॉस्क बड़ी कम थी। आज आप देखिए हर गांव में 3-3 से 4-4 मॉस्क हैं, जो कि गांव की जो इकोनॉमिक कंडीशन, जो गांव को देख के लगता है कि टूटे हुए घर हैं, छत लीक कर रहा है, और बीच में ब्राइट ग्रीन कलर की शाइनिंग मार्बल लगी मस्जिद है, जिसको लोग कहते हैं सऊदी पैसे से बनी है। एक वो डेवलपमेंट होती गई। और इनके जितने मौलवी मुल्लास थे, ये हम नहीं कह सकते कि कश्मीर में हर मौलवी जो था एंटी इंडिया आ जाए, वो था, ऐसा नहीं होता है। हर जगह बैलेंस होता है, तभी तो कौम चलती है। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे अंडर थ्रेट एंड फोर्स सारे मॉस्क के जो मौलवी हैं, अभी देवबंदी जो देवबंद से पढ़ के आते हैं, अभी वो हैं। और देवबंद का अगर आप कुरान का जो इंटरप्रेशन है, जो बुक है, वो पढ़ेंगे, जिसको इनफैक्ट अभी कैंपेन चल रही है कि बैन होना चाहिए, उसमें जो इंटरप्रिटेशन है कुरान की, वो इतनी इतनी ज्यादा बायस और इतनी ज्यादा गलत है कि अगर आप भी उसको पढ़ोगे तो शायद आपको भी लगने लगा कि भाई हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो कुछ लोगों को उन्होंने जिहाद में टारगेट किया, ठीक है। कुछ लोगों को उन्होंने न्यूज़पेपर और झूठी खबरें फैलाई। कुछ लोगों को जिनके गर्लफ्रेंड से इशू थे, जिनकी जमीन जायदाद का इशू था, जिनका किसी को शादी नहीं होने दे रही थी, अपने बाप से पंगा था, उसने गन उठा ली। यंगस्टर था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जाके अपने गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड को मारा, या अपने होने वाले ससुर जो मना करा शादी को, उसको ठोक दिया। जब बगल में पड़ोसी जिसने अपनी जमीन नहीं दी, इनके जमीन से पंगा, उसको उड़ा दिया। और फिर हुर्रियत ने एक गेम खेली। इन्होंने बोला 94 में कि जा तो आप हमें 1 लाख रुपया कैश दीजिए, या आप अपना एक बेटा दीजिए जिहाद के लिए। ये एक अंडर बड़ी ब्रीक सी लाइन है जिसको लोगों को समझना चाहिए। अब हुआ क्या, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? सारी मिलिटेंसी पुअर फैमिली के बच्चों ने लड़ी, जो बंदूक लेके आगे आए। क्योंकि जो लोअर स्टेटा थी सोसाइटी की, चाहे उसमें पुअर किसान था, कसाई था, कॉबलर था, मोची जो भी था, नाई था, इन्होंने क्या किया, अपने बेटे दे दिए जिहाद में। बेटे वैसे बड़े उत्सुक थे जाने के लिए, यंगस्टर्स को गन अच्छी लगती है, एंड अपनी जान छुड़ाई। जितनी पैसे वाले लोग थे, उनका कोई बेटा मिलिटेंसी में नहीं आया। उन्होंने 1 लाख रुपया डोनेट किया और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बेंगलोर बाहर भेज दिया, फॉरन भेज दिया। इसलिए एक बड़ी डेमोग्राफिकली इतना ज्यादा डिस्टिंक्ट प्रोफाइल है कि जो प्रोपेगेंडा करने वाली हुर्रियत वो है, वो सारा अपर क्लास है, पढ़ी लिखी। और जो एक्चुअली उनके योद्धा हैं जिहादी, वो सारे नीचे से आए। इनका कभी आपस में तालमेल हो ही नहीं सकता था। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ फोर्स। अनदर थिंग विच हैपेंड, जब 90s में और 90 से पहले जो लोग कश्मीर गए थे, दे विल सी द पीपल आर वेरी हम्बल। कश्मीरीज को बाय नेचर बहुत हॉस्पिटेबल हैं। एक अकेला कश्मीरी आपको मिलेगा तो आपको 10 मिनट में आपका दोस्त बन जाएगा। दे आर वेरी नाइस पीपल। बट जब वो इकट्ठे होते हैं और जब उनको एक भाषण दिया जाता है, तो उनको आप ये पीयर प्रेशर कह लो, या उनको एक सेंटिमेंटल एक उबाल आ जाता है उनके अंदर, कि उनका बिहेवियर चेंज होता है। लेकिन 90s में जब मिलिटेंसी फैल रही थी और पीक पे थी, तो भी नॉर्मल जनता सेंसिबल थी। ठीक है, उनके बच्चे मिलिटेंट, चाहे वो फोर्स से बने, 1 लाख के बदले में बने, जैसे भी बने, बट उनके पेरेंट्स से हम बात करते थे, गांव में बैठे थे, एक ना बड़ा अलग सा उनका कॉर्डियल से रिलेशन था। आज की जनरेशन के यंगस्टर्स हैं, वो आपको एग्रेसिव दिखते हैं। और लोगों को बुरा लगेगा, मैं आपको सच बताता हूँ, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है कि कंट्री साइड में, मेन सिटीज को छोड़ के 90s में कोई एक ऐसी फीमेल जो कि से 14-15 साल से लेके 30-35-40 साल की एज ग्रुप में थी, कोई ही होगी लकी जिसको मिलिटेंट के साथ सोना ना पड़ा। यस सर। क्योंकि जब आपके पास गन है, आप आओगे, खाना भी मांगोगे और जिस्म भी मांगोगे, और एक नॉर्मल आदमी उसको डिनाई नहीं कर सकता। फिर जब अफगानी और वो आने लगे बाहर वाले, कुछ लड़कियों ने अपने आप को वॉलंटियर किया, बिकॉज उनको था कि जिहादी के साथ सोने से जन्नत मिलती है। तो देखिए, ऐसे वाला प्रोपेगेंडा को सिविलाइज वर्ल्ड का किंग, इसका लीगल स्क्रूटनी स्टैंड नहीं कर सकता, बट ऐसा हुआ है। हम इसको डिनाई कर सकते हैं आंख बंद करके, नहीं नहीं नहीं। तो ये हमें तो एक डीएनए चेंज, मुझे आप पूछोगे तो मैं तो बोलता हूँ डीएनए चेंज हुआ है वैली का, 90 से लेके अभी तक। एक जो अग्रेशन यंग इसमें लोगों में है, उनके पास कोई रीजन नहीं है अग्रेसिव होने का। सी, जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, आर्मी अंदर आई, आर्मी ने ऑपरेशन तो किए हैं, जितना सद्भावना के अंदर काम हुआ है, जितने बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं, उनके एजुकेशन, आज लोगों को आईआईटी और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की कोचिंग दी जाती है, आर्मी स्कूल्स बने हैं, कितना कुछ है। अभी तो एजुकेट होने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जब आपका डीएनए में उबाल आ जाता है ना, बदल जाता है, तो उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं ये बड़ी लंबी लड़ाइयाँ होती हैं, ये 2-4 दिन में ना शुरू होती हैं, ना 2-4 दिन में खत्म होती है। मिलिटेंसी 1931 से ट्रेस करो, तब से इनके जो दिमाग में जो कीड़ा डाला गया शेख अब्दुल्ला द्वारा, वो अभी तक चल रहा था। और नेक्स्ट जनरेशन को जो ये डीएनए की बात मैं कहता हूँ, ये एक फैक्ट है
और उसके बाद अभी उसका एक मिक्सचर का जो रिजल्ट अभी हम देख रहे हैं. बट आई स्टिल होप एंड आई एम श्योर अभी भी मोस्ट ऑफ majority of Kashmiri population is sensible. They know where the good lies. You ask them to do they want to go to Pakistan, they'll say no. वैसे वो झंडे उठा के ठीक है, जब ऑर्डर आता है कि जुलूस निकालो तो निकालना पड़ता है, पर ऐसा है नहीं. आई आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर, सो इट्स ओके. इट्स नॉट दैट बैड एज इट अपीयर्स टू बी. And so one more question is there कि you said कि 90s के टाइम पे काफी उबाल आ गया था एंड टेररिस्ट जो है फोर्सफुली अबडक्ट करते थे लेडीज को, कंट्री साइड की जो वुमेन थी जिनके पास उतनी नॉलेज नहीं, अवेयरनेस नहीं होती थी. एंड फिर भी जो एक ब्लेम है आर्मी पे आता रहता था, क्योंकि लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है कि जो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो सेम है. जब भी कोई रॉन्ग डूइंग्स होती है, कोई दूसरी फोर्स करती है, लाइक पैरामिलिट्री ने कोई चीज करी है, जैसे गांव कदल का एक कांड हुआ था, ब्रिजबेरा में कांड हुआ है, तो वहां पे सिविलियंस की हत्याएं हुई हैं, लेकिन जो आर्मी मैंने नहीं की हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा की गई हैं. तो सर कैन यू क्लियर द कंफ्यूजन बिटवीन व्हाट पैरामिलिट्री फोर्सेस आर, उनका क्या काम रहा है वैली में, और आर्मी का टिपिकली क्या काम रहा है वैली में, ताकि लोगों में कंफ्यूजन ना रहे कि आर्मी ही एक जो है जिस पे एलिगेशन हमेशा लगता रहता है. नहीं, पहले मैं बता दूं, वेदर आर्मी थी या पीएमओ पीएमएफ थी या सीपीओ था, किसी ने ना, जैसे आपने 2 इंसिडेंट का नाम लिया, बीज बिहारा वाला हुआ था, सबको पता है. ये जो फ्लेयर अप हुआ, इनको छोड़ के सबका एचआर रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है. ऐसा नहीं है कि आर्मी नहीं करती बाकी करते, ऐसा नहीं, कोई नहीं करता. ये जो बीज बिहारा में इंसिडेंट हुआ था, जब उनके ऊपर अटैक हुआ था, उनका अफसर की डेथ हुई थी, तो अगर उनको इमोशंस, दूसरी पार्टी को इमोशंस आ सकते हैं पाकिस्तान को लेके और आईएसआईएस को लेके, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे जवानों पे गोली चलेगी, हमारा अफसर मारा जाएगा. तो Yes, sir. इंसान है, वो रिटेलिएट करके. बट इसको आप, हम उस रेप और उसके साथ नहीं जोड़ सकते, वो अलग कहानी. ये एक बैटलफील्ड काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था. जहां तक क्लासिफिकेशन का कंसर्न है, रेगुलर आर्मी फोर्स, रेगुलर डिफेंस फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें तीनों के एलिमेंट्स वैली में है. पीएमएफ बेसिकली 2 हैं, वो भी अभी आर्मी के अंडर ही हैं, आरआर और असम राइफल्स. ये इसको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं. सिर्फ 2 हैं, पहले पहले ज्यादा थी, अब नहीं है. असम राइफल्स इधर नहीं है, असम राइफल्स पूरी नॉर्थ ईस्ट में है. ये बीएसएफ, आईटीबीपीएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ, एसएसबी, सीजीएफ, ये सारे जो हैं ये आते हैं सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं. पीएमएफ बेसिकली अगर आप देखेंगे, पीएमएफ का जो मतलब है पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसका जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि ट्रुप्स जो हैं वो Sir. कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. सो पीएमएफ इज अ फोर्स जिसका लीडरशिप आर्मी से आती है. तो जब असम राइफल्स और आरआर में दैट इज आर्मी लीडरशिप, बट इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है. सीपीओज और पीएमएफ का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और बजटिंग होम मिनिस्ट्री से होती है, लेकिन पीएमएफ वाइल होम मिनिस्ट्री से उनकी पेमेंट और बजट आता है वो ये तो आरआर और असम राइफल्स. बट ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सुबह उठ जाती है, कॉग्निसेंस ना ले, ऐसे नहीं होता. नन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन पर से आप कह सकते हो कि ये रेप एलिगेशन और मर्डर और ऐसा कुछ नहीं. इक्का दुक्का केसेस हर ऑर्गेनाइजेशन में हुए हैं, नॉट मैनी. Okay. And one more thing is there कि सर you said कि जो allegations लगते हैं वो इक्का दुक्का हैं, which is correct, which is true. ऐसा नहीं है कि all forces are clean or all the world. अगर हम बाकी वर्ल्ड की फोर्सेस से भी कंपेयर करें तो सारी फोर्सेस का नेचर सेम ही होता है. एंड अबाउट कस्टोडियल डेथ्स इन कश्मीर, और एक और र्यूमर हमेशा रहता है कि हमारे बंदे उठा लिए कश्मीर से, रातों रात आके आर्मी उठा के ले जाती है, फिर अगले दिन उसका पता नहीं लगता है कहाँ चली गई है. तो whenever an army goes for a raid, कहीं रेड पे जाती है या कॉर्डन सर्च में जाती है, अगर उसको किसी को उठाना है तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट. उसका प्रोसीजर होता है कि उसको रिटर्न में देना होता है कि साइन करके उससे, आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर कि वो प्रोसेस कैसे होता है जब आपको किसी को उठाना है कॉर्डन एंड सर्च में. तो से कॉर्डन सर्च आजकल बड़े कम होते हैं. 90s में बड़े होते थे, अभी नहीं होते, बिकॉज पूरी पॉपुलेशन, एक आदमी को पकड़ने के लिए पूरे गांव को 400-500-600 आदमी को सुबह सुबह उठा के 4 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, 3 बजे सुबह सुबह, तो वो भी बंद हो गए हैं. पर जब भी ऐसे वाला होता है, जब आपने किसी को अरेस्ट करना है, पहले हम आर्मी ना अरेस्ट करने नहीं जाती, बाय द वे. यस सर. हमारा काम नहीं है अरेस्ट करना. अगर हमें एक मिलता है कि टेररिस्ट की खबर है कि फलाने घर में है, और हम एंटिसिपेट करते हैं कि अब इसको जब कॉर्डन करेंगे तो हमारा एक फर्ज बनता है हम उसको सरेंडर करने का एक मौका दें. क्योंकि
एक अपना ही कश्मीर का लड़का, अब उसका दिमाग जैसे भी खराब हुआ हो, चाहे फोर्स से हुआ हो, चाहे मिसगाइडेंस से हुआ, जो भी हो गया ना हिस्ट्री, अब उसने बंदूक उठा रखी है। बंदूक उठा रखी है तो लड़ना हमारा काम है। हम पुलिस को ये नहीं कह सकते कि आप जाओ, पुलिस वाले भी हम हमारा काम बेसिकली स्पेशलिस्ट यूनिट से आर है, यही काम है। तो ऐसे ऑपरेशंस में हम पुलिस वालों को साथ लेके जाते हैं पहले से ही। कई बार क्या होता है कि इतना शॉर्ट नोटिस होता है कि हम पुलिस वालों को थाने से जाके उठा नहीं सकते, या रिमोट, जैसे मैं जिस आर में था, हमारे आसपास तो रोड ही नहीं थी, नियरेस्ट रोड 1 घंटा चलना पड़ता था। अगर मेरे को नॉर्थ की तरफ ऑपरेशन करने जाना है और पुलिस स्टेशन मेरा साउथ में था कोई 8-9 किलोमीटर, पहले पैदल जाकर उनको लाने में 3 घंटे लग जाते थे। और वो भी तो उनके अपनी एंगेजमेंट्स है ना, आप ये यस नहीं सर। कैसे चलो चलो हमारे साथ ही, आप अपना काम छोड़ दो, किसी की एफआईआर कट रही है कि किसी का मर्डर हो रखा गाँव में, सो भांग। सो उन केसेस में, एक्सीडेंसेस में क्या होता था, जिसपे आप हिंट कर रहे हो, जब पुलिस वाले नहीं होते, तो हम कॉर्डन लगा के फिर भी हम वेट करते थे कि जब ऑपरेशन शुरू करने से पहले गांव का जो मुखिया है और जो फैमिली मेंबर होते हैं उस मिलिटेंट के या टेररिस्ट के, उनको भेजा जाता था उनसे बात करने के लिए, भाई आ जाओ आप सरेंडर कर लो। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं और जब फायरिंग स्टार्ट होती है और उसके बाद जब वो मारे जाते हैं, पुलिस आ गई तो ठीक है, नहीं तो गांव का जो हेड होता था वो हमें सर्टिफाई करके देता था कि भाई हमारे सामने ऐसे हुआ, इन्होंने ऑफर दिया, सरेंडर इन्होंने नहीं माना और उन्होंने उल्टा फायरिंग शुरू कर दी, आर्मी ने रिटेलिएट किया तो उसको खत्म किया है। कई बार घर भी जल जाते हैं, प्रॉपर्टीज भी जलती हैं, उनको कॉम्पनसेशन भी जाती है। अभी आप ये भी समझें कि आप ये कह सकते हो कश्मीरी कोई कह सकता है उठ के, और इनफेक्ट आप कौन से बड़े पीसफुल इलाके में आज हो, लेकिन पहले डिस्टर्ब था, आप किश्तवाड़ के हो, आप उठ के कह सकते हो कि देखो जी, आर्मी बाहर से आई, पुलिस तो हमारी अपनी है ना, जेएनके पुलिस हमारे यस अपने फैमिली वाले हैं ना उधर। यस सर। अगर आर्मी इतना अत्याचार करती है, हम कुछ भी कर ले, फौज कुछ भी कर ले, जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अभी सिविल लॉ फॉलो करता है। आर्मी के अंदर हमारा मिलिट्री लॉ हमारे अपना इश्यूज के लिए है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक आर्मी वाला बाहर जाके 15 लोगों को मार के आ जाए और पुलिस उसको कुछ नहीं कर सकती। एक आर्मी या डिफेंस फोर्स के ऑफिसर जवान को आप अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक वो 2-3 किस्म के कांड ना करे। उन कांडों में ये सारे शामिल हैं। आप बाहर जाके छुट्टी में या कहीं ड्यूटी के बाहर निकल के मर्डर कर दो, रेप कर दो, चोरी कर दो, आपको जो आर्मी की इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाती है। आपको इम्यूनिटी तब तक है जब तक आप ड्यूटी पे ऑपरेशनल काम कर रहे हो, जो कि जैसे आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर्स पावर एक्ट में कुछ हमें प्रोटेक्शन दी गई है। बट उस एक्ट के बावजूद ये हमेशा किया जाता है सेफ गार्ड कि इधर देयर इज अ लोकल पुलिस गाय विद यू, नहीं तो गांव का मुखिया और घर के मेंबर के बिना हम किसी घर में नहीं घुसते, चाहे मॉर्निंग हो चाहे रात हो। ये आप किसी भी कश्मीरी को 1-to-1 जिसने देखा है उसको पूछे, देखो हमेशा घर का जो ताला, अगर किसी गांव को आपने सर्च करना है उसमें 15-20-40 घर हैं और 2 घर बंद भी पड़े हैं, ताले तोड़ने पड़ते हैं। सपोज वो फैमिली वहां नहीं है तो हम नहीं तोड़ते वो ताला, वो गाँव का मुखिया उस ताले को तोड़ता है, उसका पड़ोसी साथ में होता है, खोला जाता है, वो पहले अंदर जाके चक्कर मारते हैं, देन जैसे कि कोई नहीं आप आ जाओ अंदर। और हम ये भी नहीं चाहते कि उनको आगे रख के पीछे से उधर फायर शुरू हो जाए, यहाँ से फायर शुरू हो जाए। तो दे आर बेसिकली सेंट इन टू निगोशिएट फर्स्ट। सो ये जैसे आपने कहा ना, एलिगेशन थोड़े बहुत, एलिगेशन बहुत सारे हैं, सच्चाई थोड़ी बहुत है। यस सर। एलिगेशन तो हमारे रोज लगते हैं, यस सच्चाई सर। इक्का दुक्का है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड या वन मोर थिंग इज दैट कि हम एक बार डिस्कस कर रहे थे सर आपके साथ, तो यू सेड कि शोपियान भाभी का केस हुआ था एक, जिसमें फेक एलिगेशन लगाया था रेप, इंडियन आर्मी के ऊपर की रेप। तो क्या क्या आप डिस्कस कर सकते हैं वो कि उस केस में एक्चुअली हुआ क्या था? क्योंकि वैसे ही केस को रिलेट करते हैं कुनन पोशपोरा में। फिर जब वर्गेश कमेटी की रिपोर्ट आती है तो वो ये बताती है कि ये एग्जेजरेटेड नंबर है। और वहाँ के देन जो डीएम थे उन्होंने भी सेम बात कही थी कि जो नंबर वहाँ गांव की महिलाएं बता रही हैं उतना नंबर से रेप नहीं हुआ है। रेप हो सकता है कि हुआ है 12-13 का, लेकिन जो कह रहे हैं कि पूरा गांव का गांव, क्योंकि वो 2 गांव हैं, पूरे गांव का रेप हुआ है, तो उसमें सच्चाई नहीं थी। तो हाउ कैन यू से कि आर्मी जो है हमेशा ऐसी जगहों पे जाके जहाँ उनको लगता है कि लोग जो है उनका रोल ज्यादा नहीं है और वहां फोर्सफुली जाके ये सब चीजें करती है। कैन यू डिस्कस दैट शोपियान भाभी केस इन डिटेल, ताकि ओके, पहले शोपियान से बात करता हूँ। आज आप किसी भी अपने कश्मीरी लोकल फ्रेंड को जिसको आप जानते हो पूछो तो वो कसम खाने को तैयार हो जाएगा कि शोपियां में एक ननंद भाभी का रेप हुआ था और डेथ किलिंग हुई थी, और वो बेसिकली सीआरपीएफ के एलिगेशन लगा था, तो वो अगर भी उनकी भी कंबैट थी तो आर्मी का नाम आ गया। यस सो शोपियां के बाहर एक स्ट्रीम है जिसमें हिस्टोरिकली बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। आपको, हम भी पहाड़ी हैं सारे, हमारे यहाँ ऐसी नदियाँ होती हैं जो कि देखने में बड़ी इनोसेंट सी होती हैं, और सडनली किसी में फ्लैश फ्लड आता है और कहीं में ना रॉक्स आर स्लिपरी, यस नीट सा वाइट सा पानी होता है, और आप सडनली स्लिप मारते हो और पानी चाहे वो घुटना घुटना ही होता है, लेकिन एक बार जब गिर जाते हो तो लोग पैनिक के कारण अब गांव में कहते हैं यहाँ भूत भी है, पता नहीं भूत का तो आई कांट कमेंट, बट
कई जगह होती हैं जहाँ इंसिडेंट Yes, होते sir, रहते yes, हैं, sir. एंड हिस्टोरिकली लाइक पिछले 20-25 साल में 10-12 इंसिडेंट हो चुके होते हैं, उस स्पॉट पे इंसिडेंट हो चुके हैं, वहां लोग मरे हैं पहले भी, रीजन कुड बी एनी। जब उनका डेथ हुई तो एकदम से खबर आई कि देखो जी रेप हो गया। उसके बाद एक टीम आई और डॉक्टर्स की, उन्होंने उस रेप को सर्टिफाई किया थ्रू बॉडी फ्लूइड। उस टीम में एक लेडी डॉक्टर थी अनंतनाग की, जो बाद में पकड़ी गई कि उसको, शी वाज मैरिड, शी हैड इंटरकोर्स विद हस्बैंड, तो उसने अपना बॉडी फ्लूइड स्पर्म शो करने के लिए एज ए सैंपल एविडेंस उसने अटैच किया फोरेंसिक। वो पकड़ी गई, उसको बाद में उस पर एक्शन लिया गया, आई थिंक जेल में, आई डोंट नो कहाँ है। वो जो केस की कहानी, वो जो उसका सच्चाई सामने आई तो किसी न्यूज़पेपर ने उसको कवर नहीं किया। आज कश्मीर का हर बंदा ये बिलीव करता है कि उनकी बॉडी से आधा लीटर से लेके 5 लीटर लोग बातें करते हैं कि सीमन निकला। कितना होपलेस सी बात है, जो कि समझ नहीं आती है, कोई हंसे कि रोए या सिर खींच ले। मेरे तो वैसे बाल बड़े कम बचे, तो ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा और ऐसे ऐसे लोग उसको मानते हैं। रही बात ये रेप, पूरे गांव को रेप करने की, पता नहीं कोई कुछ आर्मीज करती होंगी तलवार जिहाद के, हम आप इमेजिन कर सकते, हमारे कोई भी ऑपरेशन गांव के अंदर पहले, अगर एक नॉर्मल पेट्रोलिंग जा रही है, नॉर्मल एरिया डोमिनेशन जा रही है, जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हो एक्शन हो ना हो, तो वो जेसीओ लेड होती है, जेसीओ और कभी कभी एनसीओ। वेयर एज अगर किसी ने कॉर्डन सर्च का ऑपरेशन करना है, या किसी गांव को घेरना है, या किसी घर के अंदर जाना है, तो इट इज ऑलवेज ऑफिसर। और हमारी इतने बुरे दिन नहीं आए फौज के, हमारी फौज का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हमारा 3 या 4 जवान मरते हैं, उसके साथ एक अफसर मरता है। इतनी हैवी कैजुअलिटी दुनिया में कहीं नहीं होती। इसका रीजन ये है कि हमारे अफसर आगे होते हैं। कैन यू इमेजिन, आप भी अफसर बनना चाहते हो कि आप एक अफसर हो और आपके सामने आपके जवान रेप कर रहे हो, आप खड़े होकर देख रहे हो, आप भी उनके साथ मिले हुए हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, It's not possible. हमारे कल्चर में नहीं है। Yes, sir. छोड़ो आर्मी, छोड़ो कोई भी फोर्स, कोई नहीं करेगी, नहीं, और ये हो ही नहीं सकता। इट जस्ट कांट हैपन। 30-35 लेडीज को रेप करना इकट्ठा, अगर आप उसको बिल्कुल ब्रूटली उसको एनालाइज करेंगे कि बिल्कुल इमोशन को साइड पे छोड़ दें, ह्यूमैनिटी को लगते छोड़ दें, तो एक एक लेडी को पकड़ने के लिए 3-3-4 लोग चाहिए। बिकॉज लेडी को रेप करना इज नॉट इजी, कि गिव ऑर्डर लाइट डाउन ऑल रेप, ऐसे डजंट मैटर। तो आपको क्या लगता है 400-500 लोग इकट्ठे हो गए, उनके हाथ पैर पकड़ लिए और उन्होंने रेप करने शुरू कर दी, और वो रेपिंग मशीन लेके आए थे कि वो लगे हुए हैं लगातार? ऐसे नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या है, यस, वन नॉट रेप और वन नॉट केस, रेप्स की बड़ी वर्जन हैं, जो कश्मीर में नहीं, हर जगह है। बॉलीवुड में भी होता है, Yes, sir. दिल्ली में भी होता है, कि आप रिलेशनशिप में जाते हो और बाद में आप उसको रेप अनाउंस करते हो। क्योंकि आप देखेंगे रिमोट एरियाज में, जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, और थैंकफुल कर्सी आर ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स जिन्होंने हमारी स्टेट को बर्बाद किया है, हमारे आज भी ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कुछ नहीं है। Yes, sir. तो वहाँ दवाई भी लेने के लिए ना गाँव वाले आर्मी कैंप में आते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं रजवार में था, हमारे आसपास कुछ नहीं था, 6-6 फुट बर्फ पड़ती थी ना, उनको मिल्क पाउडर हम लोग देते थे, बिकॉज उनके पास बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं होता था। अब जब ऐसे एक एफिनिटी सी डेवलप होती है, और आप 2 या 3 साल के टेंडर पे गए हो, और आपका जैसे मेडिकल असिस्टेंट है, जो या एक हमारी टीम होती है जो स्पेशली ये काम करती है, कोई ऑपरेशन में बिजी है, कोई, हो सकता है कि आपका एक किसी के साथ एक आधा कॉन्टेक्ट हो जाए, पॉसिबल है, इंसान है, आपको अट्रैक्शन हो गई, कुछ हो गया, और फिजिकल रिलेशन भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, और बाद में आप उसको क्लियर अप कर दो। जब आप पकड़े जाओ, जब आप बोलो कि ज्यादा हो गया, वट एवर, आपकी कॉन्शियस जाग गई सडनली एक दिन रात को, और आप बोले मेरा रेप हो गया है। रेप भी हुए हैं, इक्का दुक्का होते हैं, ऐसे वाले केसेस भी हैं जिनको रेप बोल के अफेयर्स को भी रेप बनाया जाता है, Yes, sir. और बाकी सारे एलिगेशन, बाकी सब फॉल्स एलिगेशन है। Yes, sir. The same case I would like to cite कि जब मेजर रंजन गोगोई ने स्टोन पेल्टर को जीप के साथ बांधा था, तो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था श्रीनगर में कि ये जना ह्यूमन राइट वायलेशन, वो कैसे बांध सकता है। पूरे इंडिया में मतलब न्यूज में छप गया था ये। और का लेकिन इंडियन आर्मी उसको ब्रेवरी एक्ट कहा था कि इट्स अ ब्रेव एक्ट, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि उनको वो करना पड़ा। लेकिन द सेम मेजर रंजन गोगोई जब वो एक लड़की के साथ होटल में पकड़े जाते हैं, तो आर्मी उनको पनिश करती है। तो मतलब ये यही चीज बताती है कि आर्मी जो है इन चीजों के रिलेटेड काफी स्ट्रिक्ट है, इट कैन नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये जो है काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए सब एलिगेशंस लगते रहते हैं। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि जो स्टोन बेल्टिंग का ट्रेंड कश्मीर में चल पड़ा, वैसे तो 1931 की एजिटेशन से शुरू हुआ है, बट ड्यूरिंग 2008 जब टेररिस्ट ने और जो स्टोन पेल्टर्स हैं, जो या जिनको हम ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं वैली में, स्लीपर सेल्स या ओवरग्राउंड वर्कर्स, उन्होंने सोचा कि आर्म्स उठाने के बजाय अगर हम पत्थर उठाएंगे तो इट कैन बी अ बेटर ऑप्शन टू फाइट द
आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, उनको हम अच्छे से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई बंदा मारा जाए तो हमारे पास एक ऑप्शन होगा बोलने के लिए कि इट्स अ ह्यूमन राइट वॉयलेशन, नियतों पे वॉर किया जा रहा है। तो हाउ इट स्टार्टेड सर, ऐसा क्यों है कि स्टोन पेल्टर्स जो उनको काफी ज्यादा महत्व दिया गया था कश्मीर की पॉलिटिक्स में और कश्मीरी पॉलिटिशियंस ने? ये महत्व दिया तो हमारी बेवकूफ़ी जो हम करते हैं, हमारी मतलब हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रीम है, कभी हम कश्मीरियत को मान लेते हैं, जो कि 81 से पहले वर्ड था ही नहीं किसी लिटरेचर में। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई बुक दिखा दो मुझे 1981 से पहले जिसमें कश्मीरियत वर्ड था। ये इन्वेंशन थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जब इंदिरा गांधी शेख का अवार्ड। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम उसको महत्व देते हैं। बट कमिंग टू स्टोन पेल्टिंग, अगर आप स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंसर्जेंसी इन JNK, तो फेजेस में आती है। कोई भी ऐसे वाला, चाहे लाइफ का सुख दुख हो, चाहे कोई एक टेररिस्ट कैंपेन हो, चाहे इंसर्जेंसी की वेव हो, वेव इसीलिए कहते हैं कि वो अप डाउन में आती है। तो जब वो अप चल रही होती है तो उसके जो मेंटर्स होते हैं बड़े खुश होते हैं, बोले ये बड़ा अच्छा काम कर रही है। जैसे 90s 95 तक पीक पे थी, जना खना राइफल उठा के जिहादी बना हुआ था। छोटे छोटे बच्चे होते थे वो, जिनको हम टॉफिस बांटते थे। हमारी गाड़ियां निकलती थी गाँव से, तंग गाँव होते थे, वो हाथ हिला रहे होते थे और साथ में ग्रेनेड के मैग्नेट ग्रेनेड साथ में गाड़ी में चिपका देते थे, क्योंकि उनको टेररिस्ट आके डरा के भी और पैसे से भी, और वो बच्चे हैं तो हमसे टॉफी भी ले रहे हैं और साथ में मेटल बॉडी में वो एक फेज था। फिर उसके बाद धीरे धीरे 95 96 तक मिलिटेंसी ने डिप करना शुरू किया नीचे, क्योंकि वो टाइम था जब इनकी आपस में लड़ाई चल रही थी। आपको याद होगा जब JK ने वगैरह शुरू किया था, पॉलिटिकल मूवमेंट थी वो बेसिकली। जब तक उस यासीन मलिक नाम के नमूने ने वो एयरफोर्स ऑफिसर को मारा, उससे पहले वो बेसिकली नॉन वायलेंट था लार्जली। तो वो जो है प्रो फ्रीडम है, उनको आज़ादी चाहिए, है ना। पाकिस्तानी उनको फाइनेंस कर रहे थे, पैसा उनका, सोच उनकी, सब उनकी, और वो चाहते थे कि ये पूरी मूवमेंट प्रो पाकिस्तान बन जाए। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, कश्मीरियों को मैं जो जानता हूँ बड़े समझदार लोग हैं, कुछ भी कह लो, वो पाकिस्तान में नहीं गया, कौन जाएगा पाकिस्तान में? पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान नहीं रहना चाहते। तो जो एक इनको गुमराह करने का आज है वो है फ्रीडम। तो उस टाइम में मिड 90s में हिजबुल मुजाहिदीन जो थी, उसने आके इन सबको साफ करना शुरू कर दिया। जो ये JKLF और ये एफिलिएट थे, अल बर्क, अल बदर, ऐसे कुछ काफ़ी सारी अल जिहाद, ये पार्टीज होती थी। कुछ प्रो पाकिस्तान थी, कुछ प्रो इंडिपेंडेंस थी। प्रो इंडिपेंडेंस वालों को ना मारना शुरू कर दिया। उसके बाद इनकी जो ओवरऑल जो लुक थी स्टेट में टेररिज्म की, वो डाउनफॉल में चली गई, स्पेशली बिकॉज आर्मी आल्सो स्टार्टेड डोमिनेटिंग देम। यही कारण है कि फ्रस्ट्रेशन कह लो इसको, कि 99 का कारगिल हुआ। क्योंकि 99 में आपको ये बताता हूँ कि 94 95 में हम लाल चौक में कभी जाते थे ना, तो बिना फायर वापस अपने पे लिए वापस नहीं आते थे। चाहे हम दिन को जाएं, चाहे रात को जाएं, चाहे किसी काम से जाएं। वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच थी लाल चौक के अंदर, तो हमें ट्रेजरी में काम पड़ता था, वहाँ भी जाते थे, तो भी फायरिंग के बिना वापस नहीं आते थे। 99 में ये हो गया था कि आप जाके आइसक्रीम भी खा सकते थे वहाँ पर आराम से। वो सरदार जी की आइसक्रीम शॉप है, ये शक्ति स्वीट्स, हम मिठाइयाँ भी खरीदते थे और राइफल हम टांग के चलते थे कि इट वॉज कूल। और टूरिस्ट भरे हुए थे 98 99 में। इट वॉज अ नॉर्मल सी, वापस आनी शुरू हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया, कारगिल कर दिया। कारगिल में 2-3 साल उलझे रहे, फिर मुशर्रफ और भी चलता रहा, फिर मिलिटेंसी ने डिप लिया। अब पूरा सेम टेम्पलेट, अगर आप सेम पॉपुलेशन को बार बार बेचोगे, वो नहीं खरीदते। जिस फैमिली ने एक बेटा मिलिटेंसी में गवा दिया गोली चलाते हुए, अगले उसको दोबारा बोलोगे तेरा नेक्स्ट बेटा भी, हाँ वो खुद सेल्फ मोटिवेशन और खुद में रिवेंज करने के लिए राइफल उठा ले तो उठा ले, उस फैमिली को दोबारा मोटिवेट करना मुश्किल होता है। तो आपको एक नया टूल फेंकना पड़ता है। पत्थरबाजी जो है कश्मीर के साथ, लाइक यू सेड, 1931 से एसोसिएटेड है। वाइल कश्मीर इज टुडे मोर और लेस फ्री ऑफ हिंदूज और पंडित्स, तो एक रिलीजन के साथ भी एफिलिएशन है। अब हज में भी इनका एक रिचुअल होता है जिसमें पत्थर मारते हैं डेविल को। तो पत्थरबाजी ठीक है, इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर और हिस्ट्री मुस्लिम्स का, वेदर नॉट कश्मीर इज ऑल ओवर। लेकिन जब कश्मीर में 2008 में शुरू हुआ, तो इसका एक इट केम विद इंसेंटिव कि आप आइए, पत्थर मारिए, 500 रुपये ले जाइए, और घर जाके 2-3 घंटे का शो है, थोड़े कैमरे में चलेंगे। और इन्होंने बाय द वे आर्मी के साथ बड़ा कम कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। पत्थरोंबाजी इन्होंने CPOs के साथ ज्यादा की है, और उसका रीजन ये भी है कि CPOs सिटीज के अंदर जल्दी CPOs ऑपरेट करते हैं। आर्मी सिटीज के अंदर तभी जाती है जब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये एक डेली वेजेस के लिए अच्छा काम बन गया कि भाई चलो, अब पत्थर तोड़ने थे 10 से लेके 5 बजे तक सड़क पे, तो 500 रुपये मिले, ठेकेदार ना दिए। यहाँ तो कैश पेमेंट थी, 15-20 मिनट जाओ पत्थर मारो, वहां से दूसरे जाओ। सेम गैंग था वो, जो एक गली से दूसरी गली, किसी गली में जाके नोहाटा में, ओल्ड सिटी में
डाउन टाउन में घूमते थे। तो अब उसके बाद एक वो स्टेज है जब फंडिंग पे इनका प्रेजेंट गवर्नमेंट ने फंडिंग पे कंट्रोल लगाया। सी पत्थरबाजों को मारने के लिए हमने तो पत्थर नहीं मारे ना आगे से, हमने तो ठीक है उनको पकड़ा, फिर रिलीज कर दिया, फिर मुफ्ती गवर्नमेंट ने भी छोड़ दिया, बट पत्थरबाजी बंद क्यों हुई ये भी आप देखिए। आज पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही? वही लोग हैं, वही मसले हैं, वही फौज है। उनको फ्रीडम आज भी चाहिए, अगर चाहिए तो फिर पत्थर क्यों नहीं मार रहे? पत्थर तो खत्म नहीं हुए कश्मीर में, पत्थर तो वही हैं, जब मारते तो वही रोड पे शाम को उठा भी लेते हैं वो, Yes. और ईंटें तो वही हैं बन रही हैं भट्टों में। तो अब क्यों बंद हुआ? बेसिकली पैसे की गेम थी। जैसे ही इनका फंडिंग खत्म हुई और ये सारे जो हुर्रियत के स्टालवर्ड्स को डाला गया अंदर, और ये पीडीपी का भी पकड़ा गया जो ऐसा बंदा है, तो इनकी जब पैसे खत्म हो गए तो लोगों ने पत्थर मारने बंद कर दिए। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि 93 94 में हमने अफगानी मिलिटेंट को पकड़ा था जिंदा। तो जब अब वो भी इंसान है ना, हम लोग किलर्स हैं, मर्सिनरीज नहीं है। हम भी समझते हैं कि ये आदमी जो बेवकूफ़ी करके आ गया है तो इंसान है, तो किसी Yes. माँ के पेट से बना जमा हुआ है हमारी तरह ही। इसका दिमाग इसने खराब कर दिया। वो मर रहा है एक कॉज के लिए जो गलत कॉज है, बट उसके हिसाब से कॉज बड़ा फेयर है। तो एट सम लेवल वी कंसिडर हिम कि भाई हैप्पी ह्यूमन बीइंग। तो हम उनसे बातें करते थे तो वो कहता था यार, कहता साहब ये बड़ा अजीब सा जिहाद है कश्मीर में। कहता हमारे अफगानिस्तान में जब रशिया आया था, हमारे गांव के गांव पे वो बम्बार्डमेंट करके उड़ा देते थे। हमारे हर अफगानी पश्तून ने कसम खाई और सारे गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिए। हमने कसम खाई हम उनका राशन नहीं लेंगे, हम उनसे पानी नहीं लेंगे, हम उनसे नमक नहीं लेंगे। कहता यहाँ कश्मीर में जो हमारे टेररिज्म चल रहा है, जिहाद चल रहा है, ये लोग गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। पूरी वालों के बच्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉलेजेस में मेडिकल का, गिलानी का बेटा एमबीबीएस कर रहा है, सलाउद्दीन बैठा हुआ पाकिस्तान में, उसका बेटा इधर डिग्रियां कर रहा है। इसे ऐसा जिहाद हमने देखा ही नहीं। पर उनको जब भेजने से पहले ये बताया गया था भाई कश्मीर में तो भैया आग लगी हुई है, वहाँ तो आर्मी जिस लड़की को देखती है उठा लेती है, मार लेती है। तो वो भी बेचारा रिपेंट कर रहा था कि मैं गलत जिहाद ला लिया। बट ये एक चीज दर्शाता है कि देखो कितने कनिंग हैं इनके मास्टरमाइंड जो करवाते हैं, और ये लोग कितने स्मार्ट हैं कि जब पैसे आते हैं तो चल पड़ते हैं, और जब पैसे नहीं आते। कई बच्चे हैं मतलब कॉलेज में स्कूल में जाके टीचर से मार खाने से अच्छा जाके पत्थर मारो यार। तो पत्थर मारो तो पैसे भी ले लो और कॉलेज स्कूल कॉलेज से बंद है। तो एक वेव है, अभी कुछ और नेक्स्ट कुछ और आने वाला है, आता रहेगा, कुछ और करेंगे। सर एक और चीज है कि स्टोन पेल्टिंग तो सर ये चलती रहती है। मतलब स्टोन पेल्टिंग के हाँ बाद एक ट्रेंड चल पड़ा था कि जब भी कोई टेररिस्ट मरता था उसके फ्यूनरल्स पे बहुत ज्यादा जो है जमघटा लग जाता था। बहुत सारे लोग वहां जाते थे और नारे लगाना शुरू कर देते थे कि हमको आजादी चाहिए। ये शहीद का दर्जा देते थे उसे। एंड शहीद इज अ राइट टर्म फॉर देम, लाइक क्योंकि शहीद का जो एक्चुअल मीनिंग है वो वही होता है कि जो अपनी धर्म की फाइट के लिए मर जाए, उसको हम शहीद कहते हैं। एंड आर्मी में किल्ड इन एक्शन यूज होता है। तो जो फ्यूनरल्स पे जाने का ये ट्रेंड चल पड़ा था, उसको सर कैसे आप देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था? उसका भी बड़ा अच्छा राइटअप था सेम। एक बड़ा प्यारा एक आर्टिकल लिखा था किसी ने, आई थिंक 2000 और 19 18 या 19 की बात है, समथिंग। यू कैन गूगल इट, इट केम इन लॉट ऑफ ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। तो एक टीम होती थी, सी गांव में पहले अनाउंसमेंट होगी उसका, मारा गया तो आप आ जाओ भाई उसके जनाजे के लिए। वो तो आपको आना ही पड़ेगा, नहीं आओगे तो यू विल बी आइडेंटिफाइड एंड समबडी विल किल यू। तो गांव इकट्ठा हो गया, फिर कुछ गाड़ियां पड़ोस वाले गांव में गई, वहां से ले आई उठा के। उसके बाद एक गैंग आता था, 3 4 घंटे उसकी मौत होने आने के बाद एक गैंग आता था, जिसके आते ही बहुत ज्यादा वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, रोना धोना, जो करलाना कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, Yes, yes. स्यापा डाल देना। और उसमें वो लेडीज आइडेंटिफाई हुई। जैसे एक लेडी थी उसमें 60 65 साल की, जो हर फ्यूनरल में आके कफन निकाल के डाल के उस माथे को चूम के बोलती थी तो मैंने अपने दूध अपना मेरा दूध पिया हुआ इस बच्चे ने, देखो क्या हो गया इसके साथ, बचपन में मेरा दूध पीता था। घर वालों को नहीं पता ये कौन सी दाई थी या कौन सी मासी है इसकी। वो अपने आप को रिपोर्टर को बोल रही है, और वो मासी काजीकुंड से लेके उड़ी तक हर जगह दिखेगी आपको। वो लोग जो स्टेज सडनली स्टेज तैयार हो गई, सडनली स्पीकर लग गया, माइक्रोफोन लग गया, सब हो गया। ये कौन कर रहा है? जिसके घर में डेथ हो रखी है उसकी होश होती है कि जिसका बेटा जैसा भी हो, मिलिटेंट था नहीं था, वो चाहे प्रेस पे आके बोलते हैं कि हमारा बेटे ने गलती की, बट दिल में माँ बाप ही होते हैं। Yes, वो मर गया ना, तो अब उसको क्या, हम उनको बुरा नहीं ट्रीट करते तो फैमिली कहाँ से बुरा ट्रीट करेगी? तो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कौन कर रहा है? एकदम से प्रेस आ गई, एकदम से स्टेज बन गई, शमियाने लग गए, और पीए सिस्टम फिट हो गया और लत्तेबाजी शुरू हो गई। तो ये सारा एक इनका एक वो टीम थी जो कर रही थी अगेन पैसे पे। अभी वही टीम है, अभी मर जा रहे हैं, अभी कल ही तो मारा है, तो अब yes, क्यों sir. नहीं हो रहा जनाजा? क्यों नहीं हो रहा ना? मतलब नो रीजन। आप तो आजादी है, घूमो आराम से। अब तो आपको
क्या कहते हैं, पहले आप जब सेंट्रल रूल लगता है तो आपको लगता है कि भाई जो स्टेट के जो करप्ट मशीनरी थी वो उसको काबू होगा। ये नहीं पता कि चाहे वो सेंट्रल की मशीनरी हो या स्टेट की मशीनरी, तो वही है। हमारे IAS IPS KS अफसर वही हैं, वही सेटअप है, वही तहसीलदार है, वही पटवारी है, वो तो रहता है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो जनाजे में ड्रामा क्यों बंद हो गया? क्योंकि फंडिंग बंद हो गई, पैसे बंद हो गए, और वो लोग आइडेंटिफाई भी हो गए कौन कर रहे हैं। तो ये इवेंट Okay. मैनेजमेंट। So thank you, sir. It was a great discussion with you. You cleared a lot of doubts, and I hope कि आगे भी discussions होती रहेंगी आपके साथ. Thank you, sir. It was an honor to have थैंक you यू। here on our platform. So Privilege thank you is so much, sir. mutual. I'm so thankful. Thank you.